Hello students. After a 1 month gap, more than 1 month gap, now we are going to start the your English literature book with chapter 4, that is looking back at life, written by Ruskin Bond. So, to, one thing more I would like to tell you that the remaining second and third chapter that I have not explained, I will explain it. I will explain it between the Unit 2 syllabus. Firstly, I will complete the syllabus that I have decided for Unit 2, means PT2. Then I will proceed to the second chapter, and then I will explain thoroughly second chapter and third chapter also. So don't worry about that. So now let us move to the chapter. This is a this story, looking back at a life, is an autobiography written by Ruskin Bond, and it is taken from that autobiography. Ruskin Bond had was a Bharat Ratna awardee. He had he have awarded by many types of literate awards. So you can search about him. Firstly, you should I will suggest you to search about him and some other books and names that are popular of Ruskin Bond. So search this and note down in your copies about Ruskin Bonds. Okay. So with before starting the chapter, there is a warm up given here, and here it is saying that which of these books are autobiographies. Work with a partner and find out whose autobiographies they are. So here some five books names are given here, and you have to find out either it is a biography, autobiography or not. So the first one is The Diary of a Young Girl. It is an autobiography written by Anne Frank. Okay, so just look for the name of the writers. Okay, and note down in your book. Wings of Fire. Wings of Fire, very famous book written by APJ Abdul Kalam. It is also an autobiography. Little Woman, written by Louisa May Alcott. It is not an autobiography. It is semi-autobiography called, and you can say it is a novel. Boy, Tales of Childhood, written by Roald Dahl. Okay, Roald Dahl. So this book is also not a autobiography. It is, you can say it is uh, either a biography or autobiography, but it is not mentioned anywhere that it is an autobiography. Okay, so it will not come in autobiography category. Treasure Island, this is also not a autobiography. It is a biography only. So Robert, it is written by Robert Louis Stevenson. So search the name of these books and their writers and find out either it is a biography or not. Okay, and mention it in your book. So now let us move to the chapter. So in the very first para, Ruskin Bond is describing about is his house where he lives. Okay, and the views that he sees from then after the views he see from his house and from his room in a daily life. Okay, so let us start the chapter. My tiny Barsati opened onto the flat concrete of the building. uh, Here Barsati doesn't mean the polythene. Okay, so Barsati means a structure, tin shed structure that is
made on the floor, they made on the roof, okay, roof of the building. So a tin shed structure that is. सो माई टैनी बरसाती ओपेंड, मतलब एक जो शेड जैसा बनता है छत पे देखा होगा आपने किसी किसी की छत पे एक शेड बनाया जाता है जो बैठने उठने के लिए, ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इज दैट बरसाती, ओके, दैट इज बरसाती, ओके. सो माई टाइनी बरसाती ओपेंड ऑन टू द फ्लैट कॉन्क्रीट ऑफ द बिल्डिंग. सो जो मेरा छोटा जो बरसाती है, जो मैंने मेरा जो शेड है, ओपन ऑन टू द फ्लैट कंक्रीट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो फ्लैट कंक्रीट है उसके ऊपर, मतलब फ्लोर पे, कंक्रीट फ्लोर पे जो है, रूफ पे, छत पे, ठीक है, वो बना हुआ है. देयर वाज नो अदर कंस्ट्रक्शन ऑन द रूफ. इसके अलावा अब उस रूफ पे और कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है. एंड फ्लाइट ऑफ स्टोन स्टेप्स रैन अप टू इट एंड ऑन द आउटसाइड द बिल्डिंग. फ्लाइट ऑफ स्टोन स्टेप्स मतलब हियर फ्लाइट, आप एक्चुअली आपको पता होगा फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होता है, सीढ़ियाँ जो होती है, सीढ़ियों का जो प्लूरल फॉर्म होता है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है. काउंट जो बनाते हैं हम नाउन्स में, जो हम जनरली यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन्स. तो फ्लाइट ऑफ स्टोन स्टेप्स रैन अप, मतलब पत्थरों का, जैसे आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, ये जो पत्थरों का बना हुआ है, ये ऐसे पत्थरों का ये सारी चीज़ बनी हुई है. तो कुछ पत्थर के पत्थर ऐसे करके बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और एक पाथ जनरेट कर रहे थे, सीढ़ी जैसा जो उस छत तक जाता था, आउटसाइड टू द बिल्डिंग, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर की तरफ, बिल्डिंग के अंदर से नहीं, बिल्डिंग के बाहर की तरफ से एक पथरीला सा रास्ता जाता था. और जो कि उस मतलब जो मेरा बरसाती है, जो उनका बरसाती था, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक रास्ता था. सो इट वॉज क्वाइट प्राइवेट. सो इसलिए क्या था, ये पूरी तरह प्राइवेट था, मतलब कोई और नहीं जा सकता था, केवल यही जाते थे उस जगह पर बैठने के लिए. आई लाइव्ड मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ माई फैमिली. अब यहाँ मोर और लेस कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना किसी चीज़ पे, और बहुत ज़्यादा एकदम से हट भी नहीं जाना. तो मोर और लेस कहने का मतलब अप्रॉक्सीमेट, हल्का फुल्का, मतलब रखना. जैसे किसी किसी होता है कि जब फैमिली मेम्बर्स होते हैं बहुत बिजी रहते हैं, जैसे मदर फादर भी बिजनेस, मतलब कोई जॉब कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम वो बाहर रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते. तो उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर. इनके फादर जो पेरेंट्स थे वो भी मतलब जॉब में थे और काफ़ी ज़्यादा, तो इनको समय नहीं दे पाते थे. तो वही कह रहा है, आई लाइव मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ माई फैमिली, ठीक है. सो मैं अपने फैमिली से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता था, मतलब उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट मैं अपनी फैमिली से नहीं रह पाता था, मतलब अपनी फैमिली में जुड़े रहना पड़ता था मुझे. जो मतलब मैं बाहर नहीं निकलता था, बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं था मेरा, और मेरे घर में कोई एक्चुअली होता नहीं था, तो इस वजह से वो घर में ही ज़्यादातर रहना पड़ता था उनको, और बाहर के लोगों से मिलना जुलना उनका उतना नहीं होता था. आई सॉ देम 2 or 3 times a day when I went down for my meals. मैं उनको 2 से 3 बार ही उनको देखता था, ठीक है. जब भी मैं मतलब अपनी फैमिली वालों को, आई सॉ देम, मैं उनको देखता था 2 or 3 times, 2 या 3 बार, अ डे, एक दिन में, व्हेन आई वेंट डाउन फॉर द मील, जब मैं नीचे जाया करता था खाना खाने, भोजन वोजन के लिए, ठीक है. उसी समय मैं उनसे मिलता जुलता था, उनको देखता था. अदरवाइज़ मैं पूरा दिन अपना यहाँ पर इसी बरसाती में गुजारता था. माई स्टेप्स वर स्टीप एंड पीपल सेल्डम केम अप टू सी मी. मेरे स्टेप्स थे, वो जो स्टेप्स मतलब ये जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप थी. स्टीप मतलब ढालू जो होती है एकदम से, जिस पर चढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. तो इस वजह से क्या, जो मेरे स्टेप्स थे वो बहुत ज़्यादा स्टीप थे. एंड पीपल सेल्डम कम अप टू सी मी, और लगभग मतलब शायद ही कोई मतलब मेरे से मिलने यहाँ ऊपर चढ़ करके आया करता था. एंड पीपुल सेल्डम, सॉरी, द एक्सेप्शंस बीइंग द बॉयज़ ऑफ द नेबरहुड. उसमें से मतलब शायद कोई कभी नहीं आता था वहाँ पे मिलने के लिए, क्योंकि वो स्टिप होता था तो उस पर कोई चढ़ना पसंद नहीं करता था. सो उसमें से कुछ एक्सेप्शन भी थे, जो कि मेरे नेबरहुड के कुछ लड़के थे जो मुझसे मिलने आया करते थे, जिसमें सोमी, हरिपाल, कृष्णा एंड रणबीर बिंग द फ्रेंडलीस्ट ऑफ देम. जिनमें से ये 4 जो लड़के हैं, सोमी, हरिपाल, कृष्णा और रणबीर, उन मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट थे, मतलब जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था. मैं एकदम एज अ फ्रेंड जो है हम दोनों, मतलब हम लोग रहते थे. तो यही सब मिलने मुझसे आया करते थे. बट दे केम लेटर, ठीक है. बट दे केम लेटर, वो मुझसे बाद में मिलने आते थे. मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे जब सबको मतलब आने का रास्ता दिख गया और सब स्टार्टिंग करने लगे, तो सब आते थे वहाँ पर. इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, देयर वर ओनली द वुमेन हु केम टू स्वीप द रूम.
मतलब ये भी आई थिंक इस लाइन से आपको समझ में आना चाहिए कि वो अभी जल्द, मतलब बहुत जल्द ही यहाँ पे सेटल हुए थे। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, देयर वर ओनली द वुमेन हु केम टू स्वीप द रूम, केवल कुछ औरतें ही आती थी जो उस रूम में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आती थी। एंड सेवरल विजिटर्स हु वर नॉट ऑफ द ह्यूमन काइंड, और कुछ ऐसे विजिटर्स भी आते थे जो कि ह्यूमन काइंड नहीं थे, मतलब वो आदमी नहीं थे, मतलब कोई जानवर था, स्क्वायरल हो गया या कोई और जानवर, डॉग वगैरह हो गया, बर्ड हो गई, चिड़िया हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आया करती थी जो ह्यूमन काइंड नहीं थी, तो वो भी उसकी छत पे आया करती थी। तो स्क्वायरल, ये सारी चीज़ें, तो ये ह्यूमन काइंड कहने का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि वो जो एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, ठीक है, वो सब वहाँ पे भी आया करते थे। देयर वर्स अ बनियान ट्री जस्ट अपोजिट स्क्वायरल, स्क्वायरल्स वर बिजी इन इट ऑल आफ्टरनून, ठीक है, एक देख सकते हैं फिगर में एक पेड़ बना हुआ, ठीक है, बनियान ट्री है। तो देयर वॉज ए बनियान ट्री जस्ट अपोजिट, मेरे घर के ठीक पीछे जो है, उस मतलब उस बरसाती के ठीक पीछे जो क्या होता था, एक बनियान ट्री था, जिस पर एक स्क्वायरल हमेशा उस पर पूरे दोपहर भर बिजी रहती थी, एक बार चढ़ना उतरना उसका लगा रहता था। स्पैरोज, क्रोज एंड अदर बर्ड्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड फ्लाइंग फॉक्सेस एट नाइट, जो स्पैरोज थे, गौरैया थी, क्रोज, कौवे एंड अदर बर्ड्स, और बाकी चिड़ियाँ मॉर्निंग में और शाम को, एंड फ्लाइंग फॉक्सेस एट नाइट, और फ्लाइंग फॉक्सेस जो होते थे, मतलब फ्लाइंग फॉक्सेस मतलब भागते हुए जो लोमड़ी वगैरह होती थी, तो इधर उधर भागते रहते, तो ठीक है, वो सब रात में वहाँ पर के मैं उनको देखा करता था। मतलब इनका काम था उस पर चढ़ जाना और सारी चीज़ों को सारी व्यूज़ को देखना, ऑब्जर्व करना। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वुड हैड अ रूम विद अ व्यू ऑल टू माई सेल्फ, यह मेरा पहला ऐसा रूम था, मतलब वो जो बरसाती थी, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला बार ऐसा पहला समय था, आई वुड हैड रूम, कि मेरे पास एक रूम था, विद अ व्यू ऑल टू माई सेल्फ, कि जहाँ से मैं सब कुछ देख सकता था। एंड आई थिंक दिस वॉज व्हेन आई रियली बिगैन रिस्पॉन्डिंग टू द साइट्स, और मैं सोच, जहाँ तक मुझे लगता है, दिस वॉज व्हेन आई रियली बिगैन, जब मैंने सच में स्टार्ट किया रिस्पॉन्डिंग टू द साइट्स, मतलब रिस्पॉन्ड करना, मतलब साइट्स को, जो जो भी वो व्यूज़ देखते थे, स्मेल्स, जो स्मेल्स आती थी, कलर्स एंड एवरीडे थिएटर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी, एवरीडे थिएटर ऑफ वर्ल्ड अराउंड में, मतलब यहाँ उनके, मतलब इस पूरे सराउंडिंग में उनके जो भी कुछ होता था वो सब कुछ ऑब्जर्व करते थे और उस पर रिस्पॉन्ड करते थे, मतलब उसको ऑब्जर्व करते थे, उसके बारे में सोचते थे, अपने व्यूज़ रखते थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे हम लोग थे ना, कुछ देखते हैं अपने मन में आइडियाज़ बनाते हैं, ये ऐसा है वैसा है, तो उसका उसमें स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ देख करके, या उसमें ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो जो भी आइडियाज़ होते हैं हम अपने में थोड़ा उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में कुछ आइडिया लेते हैं। तो सेम काम वही भी बचपन में मतलब किया करते थे। अ ब्रॉड पाथ रैन बिसाइड द बिल्डिंग विच वॉज नॉट वेरी बिजी, एक चौड़ा सा रास्ता बिसाइड द बिल्डिंग के जस्ट बगल से, विच वॉज नॉट वेरी बिजी, जो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होता था, मतलब बहुत रेयरली कोई आ जाया करता था, बट द एक्टिविटी ऑन इट वॉज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, लेकिन जो उस पर एक्टिविटी होती थी उस रोड पे, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, तो उसको भी वॉच करने का काम किया करते थे। तो उसमें क्या होता था, एक बॉक्स वाला होता था, जो बॉक्स लेकर चलता था, विद अ टीन ट्रंक ऑन हिज हेड, एक टीन का डब्बा उसके बॉक्स होता था जो उसके अपने हेड पे रखता था। उसमें क्या क्या होते थे, सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम ब्रेड एंड बिस्किट्स, वो सब कुछ बेचता था, ब्रेड और बिस्किट से लेकर के, फ्रॉम द बेकरीज टू हेयर ऑयल, बेकरीज जो भी होते थे उससे लेकर के हेयर ऑयल तक, सेफ्टी पिंस, इलास्टिक फॉर पैजामाज एंड आय, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बेचा करता था। उसके बाद एंड आया विद अ बेबी इन अ प्रैम, ठीक है, और एक आया होती थी, एक आया भी जाया करती थी जो एक प्रैम मतलब जो स्केटिंग टाइप की होती है, जिसमें बच्चे को रख करके और टहलाने निकलते हैं ना, तो सेम वैसे ही बच्चे को, जिसको पैराम्बुलेटर बोलते हैं, जिसको उस पैराम्बुलेटर में रख करके बच्चे को जैसे घुमाते हैं, तो उसी को कह रहा है प्रैम, तो इसी को शॉर्ट में लिख दिया प्रैम, पैराम्बुलेटर होता है, ठीक है। तो उस प्रैम में रख करके बेबी को, जिसको जिसको हिंदी में अगर सर्च करिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा, बच्चा गाड़ी, जिसमें बच्चे को रख करके और टहलाने निकलते। तो एक आया होती थी जो उसको लेकर के निकलती थी। फिर दूसरा कौन होता था, रेंट कलेक्टर होता, एक रेंट कलेक्टर होता था विद द टीथ एंड द नॉस्ट्रिल्स ऑफ ए हॉर्स, एक हॉर्स के, मतलब क्या करता था, एक विद द टीथ एंड नॉस्ट्रिल्स ऑफ ए हॉर्स, तो जो नॉस्ट्रिल्स और टीथ, मतलब पहले लोगों के माइंड में क्या होता था कि एक होता है ना, कि एक आइडियोलॉजी चलती थी कि किसी चीज़ को लेकर के, मतलब काला जादू टाइप का लेकर के, ऐसी सारी चीज़ें, कि अगर घोड़े का नाल का अंगूठी बनवा लो तो
कभी बुरा नहीं होगा, भूत उत नहीं रखे पकड़ेगा, या ऐसी सारी चीज़ें। तो ये जो मिथ होता था, जो माइथोलॉजी होती थी जिस पे लोग बिलीव करते थे, तो उसी तरह ये जो रेंट कलेक्टर था वो भी उसको बिलीव करता था। तो जो क्या करता था, हॉर्स के टीथ और जो नॉस्ट्रिल्स थे, ठीक है, उसको मतलब अपने साथ अपने शरीर पर मतलब उसको पहने रहता था कहीं ना कहीं। द पोस्टमैन ऑन हिज ब्रांड न्यू एटलस बाइसिकल, एक पोस्टमैन जो कि अपने नए एटलस बाइसिकल पे जाया करता था। फिर एक और पर्सन देखते थे, द फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर होता था, कॉलिंग हिज वेयर्स इन हाई पिच, जो अपने जो सामान थे जो, ठीक है, उसको खूब हाई पिच में बुलाता था, सेब ले लो, संतरे ले लो, इस टाइप का, ठीक है। रादर इसेंट्रिक क्राइज, जो कि क्या होता था कभी कभी इसेंट्रिक, रादर कभी कभी क्या होता था, इसेंट्रिक क्राइज होता था, एक तो कह सकते हैं कि एक अलग सा टोन निकालता था और कंटिन्यूस होता था, उसकी उसकी कंटिन्यूटी होती, मतलब कुछ कुछ मिनट पे मतलब एग्जैक्ट 2 मिनट्स के डिफरेंस पे जो हुआ वो चिल्लाता था। सो अ लाइन ऑफ स्कूल गर्ल्स विद रेड रिबन्स इन देयर पिकटेल्स, ठीक है, एक स्कूल गर्ल्स की जो लाइन होती थी, एक जाती कभी जाया करती थी, छुट्टी छुट्टी होता था तो विद रेड रिबन्स इन देयर पिकटेल्स, अपने दो चोटियाँ जो होती थी उनको पिकटेल्स, जो चोटियाँ होती पिकटेल्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो पिकटेल्स में तो उसमें रेड रिबन्स बंधे होते थे, तो उनकी एक लाइन जाया करती थी बच्चों की, छोटी लड़कियों की। सो ये सारी चीज़ें वो अपने उस छोटे से जो रूम जैसा था उनका, ठीक है, उस बरसाती से देखा करते थे और ऑब्जर्व किया करते थे, उसके बारे में कुछ आइडियाज़ अपने माइंड में क्रिएट करते थे। व्हेन इट रेन देयर वॉज ग्रेटर एक्टिविटी, जब वहाँ बारिश होती थी उस सड़क पे, उसके एरिया पे, एट द, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेटर एक्टिविटी, मतलब कुछ अलग तरीके से एक्टिविटी होती थी। वो क्या होता था, एट द फर्स्ट रम्बलिंग, जब गड़गड़ाहट की आवाज़ होती थी और मतलब बादल चमकने लगते थे, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती थी, वोमेन वुड रस आउटसाइड टू ब्रिंग इन द वॉशिंग, वुमेन भाग करके बाहर जाती थी, जो भी कपड़े उपड़े सूखने के लिए बाहर रखे होते थे धुल कर, ठीक है, उनको सब उठा करके ले भागती थी अंदर। एंड इफ़ देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, और अगर तेज़ हवाएं हो जाती थी, ठंडी हवाएं, ब्रीज में ठंडी हवाएं, जब तेज़ ठंडी हवाएं हो जाती थी, तो उनमें से किसी को टू चेज अ फ्यू गारमेंट्स अक्रॉस द कंपाउंड, तो कुछ कपड़े उड़ जाया करते थे, जिसको वो दौड़ा करके मतलब दौड़ करके पकड़ती थी या उठा करके लाती थी। ये सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते थे। फिर व्हेन द रेन केम, जब बारिश होती थी, इट केम विद वेनिगेंस, वेंजियंस, वेंजियंस मीन्स होता है कि बदला लेने टाइप का, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं रेप्टिकल, रेप्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रेप्टिकल होता था। सो इसकी सेकंड मीनिंग रेप्टिकल होगी। तो व्हेन द रेन केम इट केम विद वेनिगेन, वेंजियंस, वेंजियंस, वेंजियंस कहना मतलब कि वही, ऐसा लगता था कि जैसे ये दुश्मनी निकालने आई हो, बारिश खूब तेज़ से आती थी। मेकिंग अ मडी रिवर ऑन ऑफ द पाथ, पूरे रास्ते में क्या क्या करती थी, एक कीचड़ का पूरा नदी बना देती थी, मतलब पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो जाता था। अ साइक्लिस्ट वुड कम राइडिंग फ्यूरियसली डाउन द पाथ, और एक साइक्लिस्ट वुड कम आया करता था, राइडिंग फ्यूरियसली डाउन, मतलब कोई भी साइकिलिस्ट जो वहाँ से गुजरता था बहुत ज़्यादा डर के बचा करके चलता था, कहीं कीचड़ में गिर ना जाए। तो हाथ, जैसे कीचड़ में कभी आप साइकिल चलाओ तो हाथ थोड़े कांपते हैं, साइकिल धीरे धीरे चलती है, हाथ कांपते हैं कि पैर नीचे ना जाए, गिरे नहीं, तो उसको कोशिश करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, वैसे जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी अगर आपने कीचड़ में चलाया होगा तो। एन एल्डरली जेंटलमैन वुड बी हैविंग डिफ़िकल्टी विद ए लार्ज अम्ब्रेला, और एक बड़े जो मतलब थोड़े एज में बड़े जेंटलमैन, जो एक कोई भी सज्जन पुरुष होते थे, वुड बी हैविंग डिफ़िकल्टी विद ए लार्ज अम्ब्रेला, एक लार्ज अम्ब्रेला लेकर के उसमें पैदल चलने में उनको डिफ़िकल्टी होती, परेशानी होती थी, कि पैंट ऐसे ऊपर करके, पजामा ऊपर करके, और कीचड़ से बच कर निकलना, ठीक है, स्लिपरी होती थी काफ़ी ज़्यादा। नेक्ड चिल्ड्रेन, फिर उसी में कुछ और ऑब्जर्व करते तो क्या होते थे, नेक्ड चिल्ड्रेन होते थे, मतलब बिना कपड़ों के, जो आपने देखा होगा गांव में जनरली नेक्ड चिल्ड्रेन होते हैं, जब बारिश होती है तो लोग बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं बिना कपड़े के निकल लेते हैं नहाने धोने के लिए, ठीक है, उसमें खेलने कूदने के लिए। वुड बी फ्रिस्किंग अबाउट इन द डाउनपोर, फ्रिस्किंग अबाउट मतलब उछलना कूदना, हॉपिंग करना, ठीक है। सो वो उछला कूदा करते थे उस डाउनपोर में, जब तेज डाउनपोर में जो होता है बारिश का होना, ठीक है, बारिश का होना, ठीक है, तो उस डाउनपोर में बारिश होने में क्या करते थे, वो उछला कूदा करते थे। So for today, I am stopping here, and from tomorrow I will discuss the next few paras. Okay, so do one thing. One, you can do one thing. Just read these paras and find out some difficult words from these the para that we have discussed here, and note down there. Write down it here on your copy,
and their meanings also, and try to remember it, try to learn it. Okay, so and one thing that exercise, that is warm up, do it, do it on your books. Okay, without feeling laziness. Okay, so don't be an idle. Okay, so do do whatever you can do at your home. Use every minute of your 24 hours to learn something. Okay, so with this we end today's session. We will discuss the next few paras that have been remain. Okay, so thank you, bye bye, take care.